And this is the passage which we are going to do today. And this is a small passage, just 13, 14 questions in it. This passage is a little bit confusing and tough. So one of the students wrote to me that, ma'am, please discuss this. So I thought I'd discuss. I share 2 readings. I'll discuss whatever passage you find difficult among them. So for tomorrow, you let me know which passage you want discussed from these 2 readings, 6 passages. I'll discuss that. Okay. And then I'll discuss on Thursday and Friday the other passages. Okay. So this is what motivates employees. Let us go to the questions straight away. Okay. Questions are, first is MCQs, and then we have the global choice questions. Choose 3 of the following statements which are true of the study of drives. And then we have yes, no, not given. Okay. So when I went to these questions, these are very long, these options. So what I did was, according to the passage, what we are told about the study of motivation. So why we do the study of motivation? So what I did was, I went through these options and then I went to the passage, even though they are long, but then, otherwise you'll not come to know. Okay. So first, A is, the theory of motivating employees is starting to catch attention in organizations in recent years. तो अभी के सालों में ये जो motivating employees की जो theory है, ये लोगों की attention grab करने लगी है. दूसरा B option है, it is very important for managers to know how to motivate their subordinates because it is related to salary. तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, उनको कैसे मोटिवेट रखना है, क्योंकि ये उनकी सैलरी से रिलेटेड है. थर्ड इज रिसर्चर्स हैव टेंडेड टू बी टू थ्योरेटिकल. जो रिसर्चर्स हैं वो इस स्टडी में बहुत थ्योरेटिकल वे में रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है उनका. एंड चौथा ऑप्शन है, the goal of employee motivation is to increase the profit of organization. तो employee को motivate करने का जो goal है वो ये है कि organization का जो profit है उसको बढ़ाया जाए. Okay. Now study of motivation के बारे में हमें क्या बताया गया? So we'll go to the paragraph, first paragraph. देखो, motivation की study का आंसर इसी पैरे में मिलेगा. आप इसको पढ़ के देखो, आपको पता चलता है क्या आंसर होना चाहिए. Let me make it big. मैम ये शायद बिजनेस गोल के बारे में बात कर रहे हैं. पहले पैराग्राफ में बिजनेस गोल इज टर्न टू अनमोटिवेटेड टीम्स टू प्रोडक्टिव वन. तो पहला पैरा जो है ये वाला है. नहीं, ये कोई और ही खुल गई है. ये मेरी, अच्छा, ओ माय गॉड, व्हाट आई हैव डन. ये ना सिलेक्ट ऑल हो गई. मैं भूल गई कि पूरी बुक है. Which is the page number? 181. Yeah. हाँ. Okay. पैराग्राफ जो है ए पढ़ो. ये वाला पैराग्राफ पढ़ो. इसी को बड़ा करती हूँ. मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया ना, वो गड़बड़ हो गई. हाँ, चलो ये पढ़ो. यहाँ पे आंसर है. इसमें आंसर है इसका. Read it all and tell me आपके हिसाब से क्या आंसर है. Ma'am, may I? Yes. Okay. Scientists have been researching the way to get employees motivated for many years. This research is a relational study which builds the fundamental and comprehensive model for study. This is especially true when the business goal is to turn unmotivated teams into productive ones. But the researchers have limitations. It is like studying the movements of a car without taking out the engine. हाँ, अब देखो, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस थी. पहले मैं इसकी हिंदी करती हूँ, आपको मैं बताऊंगी कैसे आंसर ढूंढना है. एलिमिनेशन मेथड का भी बताऊंगी. जो साइंटिस्ट है ना, वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का तरीका बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं. ये जो रिसर्च है, ये रिलेशनल स्टडी है.
जो कि फंडामेंटल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाएगी स्टडी का। और फिर ये खास तौर पे ट्रू तब है कि बिजनेसेस का जो गोल है वो है कि जो उनके अनमोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज कैसे बनाया जाए। पर इनकी जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनकी उनमें कुछ कमियां हैं। वो क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस क्या है उनकी? वो लिमिटेशन ये है कि मूवमेंट ऑफ कार स्टडी कर रहे हैं इंजन को देखे बिना। मतलब अब आप थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर हाँ, फिर आप सारा आप देखो। अब ये A, theory of हाँ, motivating employees. स्टार्टिंग टू कैच अटेंशन, ये थोड़ी है उसका स्टडी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। ये तो उन्होंने मैम वैसे डी, मैम डी। हाँ, सी C. देखो डी सी वुड बी द है, आंसर। डी में है कि गोल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीज द प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं हुई पैरे में। नो मैम। ओके, फिर उन्होंने ये भी नहीं बात करी कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे मोटिवेट करे, क्यों करे, इसकी भी बात नहीं हुई। ये भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और ये रिसेंट टाइम्स में अटेंशन में आई है, ये बात सही है। पर ये थोड़ी है स्टडी ऑफ मोटिवेशन के बारे में क्या बताया गया हमें। ये तो है कि C. मोटिवेशन की स्टडी क्यों कर रहे हैं। सो ओनली दिस इज लेफ्ट। और इसका C, मतलब भी research. बहुत क्लियर है कि इट इज टू थ्योरेटिकल। मतलब कार की मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं, इंजन को तो दिखाई नहीं रहे किसी को। मतलब प्रैक्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं है, टू थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया सी क्यों है आंसर? यस मैम। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what can be inferred from the passage about the study of people's drives। अब ये जो पैसेज है उसमें ना पीपल्स की ड्राइव्स की स्टडी की गई है, इससे क्या नतीजा निकलता है? इन्फर्ड मतलब मैम? हाँ इन्फर्ड हाँ, what can be inferred is इसमें क्या इन्फ्लुएंस निकलता है, इसका क्या नतीजा निकलता है। What can be deduced, what can be found from the passage, what can be ultimately decided, जो निकलता है पैसेज, इन्फर किया जाता है, जो डिड्यूस किया जाता है, जो इससे निचोड़ निकलता है इस पैसेज से। तो सबसे पहला है कि satisfying employees drives can positively lead to change the behavior। अगर हम उनकी ड्राइव्स को सेटिस्फाई करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिवली चेंज हो जाता है। सेकंड है उनके जो, अगर हम इनकी एम्प्लॉयज को इनकी ड्राइव्स को स्टडी करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके इमोशंस पे नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तीसरा है कि अगर हम उनकी ड्राइव्स को सेटिस्फाई करते हैं तो उसमें कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और चौथा है कि अगर हम उनकी ड्राइव्स को सेटिस्फाई करते हैं तो उससे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ओके, नाउ वी विल गो टू द पैसेज और हमने देखना है कि इन चारों में से क्या है। So we'll go to passage number 2. आंसर इज सी। आंसर जो है वो है, मैं बाद में बताना, आंसर पहले पढ़ते हैं। ओके मैम आंसर जो क्वेश्चन है ना 28 का, जो क्वेश्चन का आंसर है कि इनकी स्टडी करने का क्या इन्फ्रेंस है, इनका इन्फ्रेंस है। अब मेरे को क्वेश्चन से ये लगा था कि मुझे इसका आंसर शुरू में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इस स्टडी का क्या नतीजा हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक खेली, मैंने ये सारी ड्राइव्स का देखा, मैंने क्विकली देखा, अच्छा ये क्यों करी है, और मुझे लगा कि कहीं एंड में दिया होगा कि इसका क्या नतीजा निकला है। ओके, तो मैंने ये अपनी डिडक्शन लगाई और मैंने ना क्योंकि ये बहुत छोटा पैरा इसको पढ़ा, इसमें से मुझे कुछ नहीं मिला, तो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस पैराग्राफ। तो इसमें मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे पता चला हाउ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशनल लीवर्स बूस्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, ये जो ड्राइव्स की स्टडी है ये बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ से भी मुझे आंसर थोड़ा सा मिल गया और मैंने यहाँ पे भी देखा तो मुझे यहाँ पे भी लगा कि इसका थोड़ा जिस्ट यहाँ पे भी है उनके बिहेवियर के बाद। ठीक है, तो आंसर जो है दैट इज सी, इट इज रिलेटेड टू इमोशन एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, स्टडी ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे भी आंसर है और मुझे एंड में भी इसका बिहेवियर की बात मिली। ठीक है, तो मैंने उससे डिड्यूस करा आंसर। तो आंसर क्या है? ए, इट कैन पॉजिटिवली लीड टू चेंज ऑफ बिहेवियर। अब बी क्यों नहीं है? बिकॉज उनके इमोशंस को नेगेटिव इफेक्ट करेगा, इसके बारे में नहीं है कहीं। हाँ, और कंपनीज की प्रोडक्शन, उनकी ड्राइव को जो स्टडी है उससे ये कि कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसके बारे में लिखा जरूर हुआ है, पर दिस इज मोर एप्ट जो ए है, क्योंकि बिहेवियर की बात दो जगह हुई है।
इनका बिहेवियर इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड ये है एम्प्लॉइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो ये सारे मैंने एलिमिनेट करे क्योंकि मुझे इसमें और इसमें थोड़ा डाउट था, क्योंकि प्रोडक्शन की भी बात करी एंड में, बट बेसिकली इट इज अबाउट बिहेवियर जो 2 जगह टच हुआ है, ठीक है। सो आई आंसर यस। मैम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली कैसे, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बिहेवियर में चेंज हुआ है? क्योंकि बात ही पॉजिटिव की हो रही है ना, अगर उनकी ड्राइव सेटिस्फाई करेंगे तो बिहेवियर नेगेटिवली तो इफेक्ट होएगा नहीं। क्या? हाँ देखो, बूस्ट की बात हो रही है, एम्प्लॉय मोटिवेशन है, तो बिहेवियर को अफेक्ट करे, नेगेटिव इफेक्ट तो बताएंगे नहीं। यहाँ पे भी है और इधर भी चांस है। See, it is related to emotion and behavior of employee. Important to study motivation of employees because it is related to emotion and behavior. So there are 4 drives और उनको स्टडी करने से बिहेवियर पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जाता है, वो मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। अदरक केड़ा पे 4 वाला है? चाय का कोई स्पेशल अदरक होता है? Okay. Let's go to the question number next. According to paragraph 3, in order to optimize employees performance dash are needed. अगर हमने employees की performance को optimize करना है तो इन चीजों में से कोई चीज हमें चाहिए। Okay? ऑप्टिमाइज में ऑप्टिमाइज मींस उसको अगर अच्छा करना है, ऑप्टिमल उनका मैक्सिमम लेवल पे लाना है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को, ठीक है। ऑप्टी, अच्छा देखो ऑप्टी वर्ड ये प्रीफिक्स भी अगर मान के चलो तो आपको ऑप्टिमिस्टिक से मतलब पता चलेगा कि ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, पता है? आशावादी में आशावादी। पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो उनकी निराशावादी। ऑप्टिमाइज करनी है अगर परफॉर्मेंस अच्छी करनी है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उसके लिए हमें इनमें से कोई चीज की जरूरत है, वो क्या है? द ड्राइव टू एक्वायर एंड अचीवमेंट एलिमेंट, इसकी जरूरत है, आर नीडेड। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड रिकॉग्निशन, ये, या करियर फुलफिलमेंट एज एंड $1,000 चेक, या फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन। इन में से 2 कोई भी चीजें यहाँ पे भरेंगे, उसकी जरूरत है अगर हमें ऑप्टिमाइज करनी है परफॉर्मेंस। मैम ऑप्टिमाइज का मीनिंग है बूस्ट भी तो हो सकता है ना? हाँ बूस्ट, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में जाओ, ठीक है। Yes. अब आपको स्टडी करना है थर्ड पैरा से ही उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है अकॉर्डिंग टू पैरा 3, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें किस चीज की बात हुई है? आपके सामने पड़ा पैरा, देखो। अचीवमेंट एलिमेंट। हाँ अचीवमेंट की बात हुई है, तो और मैम पॉक्स की भी बात हुई है, पॉक्स पर्क्स की बात हुई है। चेक प्लस एप्रिसिएशन। तो पर्क्स के लिए क्या सिनोनिम है वहां पे? इंसेंटिव्स मैम। यस मैम, इंसेंटिव। हाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन की भी बात हुई है ना, देखो। यस मैम, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हाँ रिकॉग्नाइजेशन की भी बात हुई है, फिर $1,000 चेक की भी बात हुई है कि ये भी देते हैं, पर कई बार एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इससे ज्यादा अच्छी है कई बार, पर ये पर्क है, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड पर्क्स। तो आपका आंसर क्या होएगा? डी मैम। यस, डी इज द आंसर, ठीक है। अब 30th क्वेश्चन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5, हाउ डज द ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड हेल्प एम्प्लॉइज परफॉर्म बेटर? तो ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड उनको बेटर परफॉर्मेंस के लिए कैसे हेल्प करता है? सबसे पहला ऑप्शन है, इट कैन हेल्प एम्प्लॉइज बेटर अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉइज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। दूसरा, इट कैन हेल्प एम्प्लॉइज फील देयर टास्क इज मीनिंगफुल टू देयर कंपनीज। तो ये हेल्प कर सकता है एम्प्लॉइज को कि उनका जो टास्क है वो कंपनीज के लिए मायने रखता है। और तीसरा है, एम्प्लॉइज को हायर गोल सेट करने में हेल्प करता है। एंड चौथा है, एम्प्लॉइज को रेपिटेटिव टास्क में हेल्प करता है। अब हम अंदर देखेंगे, पैराग्राफ 5 में से ही आंसर है, तो उसमें सीधा हम पैराग्राफ 5 में जाएंगे। 4 को हमने नहीं देखना, 3 को पहले देखा था, अब 5 पे जाना है, इसको पढ़ना है और देखना है क्या आंसर आपको लगता है कि होएगा। चलो कोई भी जना पढ़ दो और देखो क्या आंसर है। मैम मैं पढ़ दूं? पढ़ दो। Okay. The drive to comprehend motivates many employees to higher performance. For years, it has been known that setting stretch goals can greatly impact performance. Organizations need to ensure that the various job roles provide employees with stimulation that challenges them or allows them to grow.
Employees don't want to do meaningless things or monotonous jobs. If the job didn't provide them with personal meaning and fulfillment, they will leave the company. हाँ, अब बताओ आपको कौन सा आंसर जच रहा है? मीनिंग वाला मैम. उनमें से कौन सा आंसर जच रहा है? मैम बी लग रहा है. बी वो मीनिंग. See, it can help employees set आंसर है, बी ही आंसर है. अब आपको इजीली मिल रहे हैं ना आंसर्स? बी ही आंसर यस मैम. है. अगला क्वेश्चन पढ़ो. अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 6, which of the following is true about drive to defend? drive to defend के लिए क्या चीज यहाँ पे ट्रू है? ठीक है, सबसे पहला ए है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स जो है सबसे डिफिकल्ट होता है एलोकेट करना. इट इज मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देन द ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड. ये वाला जो ड्राइव टू डिफेंड है ये ज्यादा डिफिकल्ट है देन ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड. तीसरा, एम्प्लॉइज थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉइस देयर ओपिनियंस. एम्प्लॉइज सोचते हैं कि उनको अपनी ओपिनियंस वॉइस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और चौथा है कि एम्प्लॉइज थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद ए मर्ज्ड कॉर्पोरेशन. एम्प्लॉइज सोचते हैं कि किसी मर्ज्ड कॉर्पोरेशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. नाउ वी विल गो टू पैराग्राफ 6 एंड सिर्फ 6 पैराग्राफ ही देखना है आपने. यही है ना 6? चलिए, who will read it? Shall I read, ma'am? Yes, yes. The drive to defend is often the hardest lever to pull. The drive manifests itself as a quest to create and promote justice, fairness, and the ability to express ourselves freely. Ma'am, this will be the voice, ma'am. Yes, very good. Express वाला, express freely में voice आ गया ना? यही वाला आंसर है drive to defend में से. This is the answer. The answer is C, ma'am. yes, C. ठीक है. Now we go to these 3. अब इसका क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है because by reading the question you will know where to go straight away to find the answers. You don't have to go to the whole passage. Okay. Passage is choose 3 letters A to F. Write the correct letters in boxes 32 to 34. Which 3 of the following statements are true of the study of drives? अब स्टडी ऑफ ड्राइव्स हो गई, सारी ड्राइव्स की स्टडी कर दी. हर पैरे में इंडिविजुअल ड्राइव के बारे में है. तो सारी ड्राइव्स की स्टडी में कौन सी चीजें ट्रू है अबाउट द स्टडी ऑफ ड्राइव्स? मोस्ट प्रोबेबली द आंसर will be in the end. मुझे end में ही था कि end में मिलेगा, but then you know it can go anywhere in between also. But first we'll go to the end and see. उससे पहले आपने क्या करना है, ये सारे F you have to read all these, okay, and translate them because आपको साथ के साथ eliminate भी करना है किसी के against कुछ दिया हुआ है. तो फिर आपका जो आपका फ्लूक लगाने का भी बचेगा ना, तो उसमें से भी आपके probability of getting the answer right will be more. You get my point? ठीक है. तो आप इसको पढ़ो पहले. मैं इसको पढ़ा करती हूँ, आप इसको जरा पढ़ो और देखो इसके साथ साथ इसको ट्रांसलेट करके इसका मतलब भी समझो. चलो नक्शी आप पढ़ दो, कोई भी पढ़ दो. सीना आप पढ़ दो. Ma'am, can I read? Yes, sure. Employee will be motivated if they feel belong to the company. If employee get an opportunity of training and करो ना साथ साथ अमिता. अच्छा. Ma'am, it means कि employee motivate feel करेंगे अगर वो same company को like if they feel belong to the company, if they consider themselves to be a part of that company. Very good. Yes. अगला. If employee get an opportunity of training and development program, their motivation will be enhanced. अगर let's say if कोई भी company है, that company is providing opportunity of training and कोई भी development program होता है जो उनकी beneficial है, so where their motivation will be enhanced, increase होगी उनकी motivation. हाँ ठीक है. अगला पढ़ो. If employee working goals are compiled with organization, complied with the compiled नहीं complied. उसके साथ मेल खाते हैं. हाँ जी. If employees working goals are complied with organizational objectives, their motivation will be reinforced. मतलब अगर उनके जो working goals हैं अगर वो complied होते हैं, मतलब जैसा आपने बताया कि मेल खाते हैं, तो उनकी जो motivation है कहीं ना कहीं तरह build up और होएगी. हाँ बिल्कुल. आगे. मैम,
If employee motivation is very low, company should find a way to increase their salary as their first priority. अगर उनकी लो है तो उनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? दे शुड इंक्रीज देयर सैलरी फॉर देयर प्रायोरिटी, जिससे दे प्रायोरिटी होगी सैलरी। हाँ ठीक है, आगे। if employee find their work lacking challenge, they will leave the company. अगर वो कोई भी कंपनी में कोई भी काम अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट दे शुड लीव द कंपनी। नहीं, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर एम्प्लॉयज को अपना काम चैलेंजिंग नहीं लगेगा तो कंपनी को छोड़ जाएंगे। छोड़ नहीं है यहाँ पे, छोड़ जाना नहीं चाहिए, वो खुद ही छोड़ जाएंगे, ठीक है। और जाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर वो छोड़ जाएंगे। आगे। Yes, employee will worry if their company is sold. If their company is sold. So वो कहीं वो हो जाएंगे, मतलब टेंशन में आएंगे कि अगर उनकी कंपनी बिक जाती है तो। हाँ, अब हमने पढ़ना है ये एंड में ही। देखो कोई आंसर है यहाँ पे? ये वाले पैरे में देखो, लास्ट वाले में इनके स्टडी के बारे में कहाँ लिखा है? यहाँ पे आगे लिखा है। पर आपको ये यहाँ पे आंसर्स जो हैं ये 32 to 30 merged with other, if their companies are merged। हाँ मैम, they merge with another, they show worries। हाँ, तो ये वाला एक आंसर आपको मिल गया। अगर उनकी कंपनी किसी से मर्ज है तो उनको फिक्र हो जाती है। अब ये कौन सा आंसर है? ये देखो F मैम, F है। अब F वाला आपको मिल गया, तो बाकी आंसर्स इसके ऊपर ही होंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम्स लास्ट आंसर आपको मिला ना, तो ये तो बाकी ऑप्शंस उससे पहले होंगी, ठीक है। तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसमें आपको ये एक आंसर मिल गया यहाँ पे। सो वील गो अबव हियर। अब इसमें देखो कोई आंसर मिला आपको ड्राइव टू कॉम्प्रिहेंड में? मैम दे अलाउड टू गो, चैलेंजेस वर्क नहीं है तो दे अलाउड टू गो। If guys don't want to do meaningless things or monotonous job, if the job यहाँ पे कुछ है लीव द कंपनी? yes, हाँ, तो आपको एक और आंसर मिल गया। यस मैम, ये आंसर। अब अगला आंसर इससे ऊपर होएगा, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें से देखो, इसमें से देखो कोई और आंसर मिला है? Belonging to the company। बिलोंगिंग टू द कंपनी। बिलोंगिंग टू द कंपनी। आपको तीनों आंसर मिल गए? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज द वे यू गो अबाउट देम। एक तो आपको मिला है एफ, एक आपको मिला है ई, और एक आपको मिला है ए ई एफ। यही तीन आंसर है, ठीक है। ये तो हम कैसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे कोई परेशानी? हाँ, ऊपर नीचे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एफ ई ए लिख दो, ई एफ ए लिख दो, ए ई एफ लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है। नाउ वी गो टू यस नो नॉट गिवन। अब इसमें मैंने आज एक इंद्रुप सर से बात सीखी। मैं एक क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने उसको बोला मुझे नहीं पता चल रहा, मैं समझाऊंगी कैसे। मुझे पता चल गया कि आंसर ये होना चाहिए, पर मुझे समझाना नहीं आ रहा। सो ही गेव मी अ वेरी नाइस टिप टू मेक। सो लेट्स गो फर्स्ट टू द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। increasing pay can lead to high work motivation। तो इंक्रीजिंग पे कहीं पे लिखा है कि उससे वर्क मोटिवेशन बढ़ेगी? हमने पढ़ा है इसके बारे में। आप सैलरी बढ़ाने की बात है। यस मैम, लिखा था मैम। मोटिवेशन बढ़ेगी। Incentives। Ma'am, $1,000 check। instead of a letter of appreciation, $1,000 check। हाँ, पर उसमें कुछ और भी लिखा उसके बाद? कौन सा है यहाँ पे? कहाँ पे है ये? The drive to acquire। The drive to acquire। हाँ, इसमें, हाँ इसमें और भी लिखा है। इसमें लिखा but है। some appreciation generate more motivation। तो फिर हम आंसर यस होगा कि नो होगा? No, नो आंसर। ओके, नो आंसर। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन ज्यादा मोटिवेशन बढ़ाएगी, नॉट एट $1,000 चेक। आंसर इज नो। Ma'am, can you explain once again? Yes, the question says increasing pay can lead to high work motivation। और यहाँ लिखा हुआ है पे बढ़ाने से $1,000 चेक देने से भी ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। So something else motivates more. So the answer should be no or yes? No। No. मैम No, Got it? हाँ, चलो अगला पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। local companies benefit more from global companies through the study।
अब लोकल कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज है ना, ये आप थोड़ा सा भी देखोगे ना सुपरफिशियली, आपने कई पैरे पढ़ लिया, Not लोकल given, और not ग्लोबल का given. कोई Not given. आंसर नहीं मिला, सो आंसर इज नॉट गिवन। ठीक है, Yes. एम्प्लॉइज, अगला पढ़ो। Employees achieve the most commitment if their drive to comprehend is met. हाँ, यहाँ पे वो पॉइंट था जो मेरे को समझाना नहीं आ रहा था। अब ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड इज मेट, द मोस्ट कमिटमेंट मिलती है, मोस्ट कमिटमेंट मिलती है ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड से। तो देखो यहाँ पे मोस्ट, हाँ यहाँ से कहीं से आंसर मिला आपको? Greatly Do impact not want to do performance. meaningless things or monotonous कमिटमेंट, jobs. मोस्ट कमिटमेंट की बात नहीं ना हुई, तो मैंने उसको बोला मुझे समझाना नहीं आ रहा, कह रहा ऊपर वाला पढ़ो, मोस्ट कमिटमेंट कहाँ से मिलती है? The greatly. ड्राइव टू बॉन्ड से। आंसर इज नो। मतलब मैम ये समझा नहीं। ये अब माइंड में रखना, इन्होंने लिखा है मोस्ट कमिटमेंट है ड्राइव टू बॉन्ड से। Okay. ओके, Yes. ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड से मोस्ट कमिटमेंट मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट में मैम। हाँ, तो फिर आंसर क्या होएगा? False. No. नो, पर मेरे को आंसर No. कहाँ से मिला? मुझे नहीं मिल रहा था ये इंद्रुप सर ने। तो आप यू हैव टू कीप योर आईज ओपन कि जो ऐसा कहीं वर्ड है कहीं और से तो नहीं हो रहा रिलेट। Yes. ओके, तो माइंड में रखोगे तो आप आंसर सही ढूंढ लोगे, फटाफट लिख लोगे नो। ओके, मैम ये मैं समझ नहीं पाया, कि एक्सप्लेन। मैं समझाती हूँ। ऐसे तो ना यहाँ से भी मुझे मिल गया था कि इसका आंसर नो होएगा, क्योंकि मोस्ट कमिटमेंट जो है वो ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड से लिखा नहीं हुआ था, समझ गए? हाँ, पर मेरे को समझाना, मैंने कहा समझाऊंगी कैसे, तो इंद्रुप सर ही बस ही केम डाउन। मैंने उसको बोला मुझे समझाऊं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है, रीड द क्वेश्चन नाइसली। Question is saying that employees achieve the most commitment if their drive to comprehend is met. और यहाँ पे लिखा है ड्राइव टू बॉन्ड से मोस्ट कमिटमेंट मिलती है। ठीक है, ड्राइव टू बॉन्ड गिव्स द मोस्ट कमिटमेंट इफ इट इज मेट। ओके, और यहाँ पे लिखा है ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड से मोस्ट कमिटमेंट मिलती है। तो इससे नहीं मिलती है, इससे मिलती है, तो आंसर क्या होगा? नो। समझ आ गया? यस Yes. मैम। You don't learn just one reading, you learn how to look around for the answer from nearby place also. Yes. Okay, सिर्फ आप ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड का क्वेश्चन है यही ढूंढते रहोगे तो समटाइम्स यू विल नॉट फाइंड अ सोल्यूशन। तो जो क्वेश्चन है कि मोस्ट कमिटमेंट, तो मोस्ट कमिटमेंट देख लो कहीं और से तो नहीं मिल रही पैसेज में, समझ गए? अब मोस्ट मीन सबसे मैक्सिमम तो एक ही चीज से मिलेगी ना कमिटमेंट। अगर इससे मिल रही है तो ऑब्वियसली इससे नहीं मिल रही। ठीक है, यस मैम। आंसर इज नो। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। The employees in former company presented unusual attitude towards the merging of two. ये कोई उनका नहीं दिया कि पहली कंपनी ने unusual attitude दिखाया, तो ये भी not given। R is not given. इसका आंसर नॉट गिवन नहीं है Ma'am, yes है ma'am. ये Show worries, ma'am. Like if the companies are two merged with global another, they business. show worries. हाँ, they Yes. show worries, तो इस आंसर इज yes। यहाँ पे Yes. है, see if their companies are merged with another, they show worries। तो फॉर्मर वाले जिनकी कंपनी को मर्ज करते हैं वो फिर वरी शो करते हैं, सो आंसर इज yes। ओके, Yes. नेक्स्ट इज the two studies are done to analyze the relationship between the natural drives and the attitude of employees। ये जो दोनों स्टडीज है, ये नेचुरल ड्राइव और एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज का रिलेशन स्टडी करने के लिए की गई हैं दो स्टडीज। अब दो स्टडीज की बात कहाँ हुई है? ऊपर See the article based on the two studies. Two studies have been done to find the relation between the four drives and motivation। और वहां पे किस चीज का रिलेशन के लिए लिखा है? Two studies have been done for what? Different thing है ना नेचुरल वहाँ पे? ड्राइव्स एंड एटीट्यूड। हाँ, तो वो गलत है ना, फिर ये नो हो जाएगा यस ना? मैम, नो हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट इज रिवॉर्डिंग सिस्टम कॉज द कंपनी टू लूज प्रॉफिट। रिवॉर्डिंग सिस्टम से कंपनी का प्रॉफिट लूज हो गया, इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है, तो आंसर इज नॉट गिवन। नॉट गिवन। चलो, एक पैसेज मैंने आज करा दिया, कल मुझे बता देना इन 6 पैसेजेस में से और कौन सा करना है। आई विल प्रिपेयर दैट। मैम इसके आंसर भेज दूंगा हाँ, मैं आंसर्स भेज दूंगी। ठीक है, अभी भेज।
Ma'am, try to do from book itself, ma'am. ये दोनों रीडिंग्स इसी बुक की हैं. नहीं ये वाला नहीं ma'am, like earlier you were sending some PDF, so if we complete first from the book it will be very like comfortable. Yes, I'll do from the book. And for the mock test also, we've come across 2-3 new passages from the past readings which are not there in my books. So they are Okay. past readings. I'll be putting that in the mock test. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. So that you have chances to get those, in the exams. So you will be able to do them now. Okay. Ma'am. Okay, then bye. Thank you, Tomorrow. Bye, ma'am. Acha, tomorrow I'll be touching the process graph. I've shared the videos. Please watch them before the class. Okay. Okay, ma'am. Watch them before the class. So in the class, we'll be just discussing the graphs which are there in the book. Ma'am, discuss the essay too, ma'am, which you have given in mock test. Okay, that essay for the ideas. Ma'am, tomorrow you discuss, ma'am, not Yeah, now. Sina. Okay, Yes. okay. Sina, you are in which group? Zoom GM or Zoom Yes, ma'am. GM? Okay, Yes, ma'am. there are other students in that group. You can have a discussion on that essay there. Okay, ma'am. Okay, there is. Excuse me, ma'am. Yes. Can I get AC PDF reading material? बेटे PDF एकेडमिक का तो बिल्कुल नहीं मैं शेयर करती हूँ. मेरे पब्लिशर ने स्ट्रिक्ट नो करी हुई है. Okay, ma'am. Only what I teach I share. That's more than enough at times. Okay, आप ma'am. कहाँ- Thank कहाँ you, पे हो ma'am. आप? From where are you speaking? Ma'am, Pakistan. Okay. मारवी आप पूछ रहे थे कि कोई और पूछ रहा था? जी मैम मैं पूछ रही थी. हाँ नहीं PDF नहीं है बट काफी PDF हो जाता है आपसे शेयर जब आप ज्वाइन करते हो क्लासेस. ओके मैम जी थैंक यू. जी मैम. ओके बाय.